پاکستان کا امریکہ سے تجارتی مذاکراتی کے لیے اعلیٰ سطح کا وفد بھیجنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت برآمدات اور امریکی ٹیرف پر جائزہ اجلاس۔ امریکہ کی جانب سے لگائے گئے نئے ٹیرف، اسٹیئرنگ کمیٹی اور ورکنگ گروپ کی رپورٹ سے متعلق بریفنگ۔ امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کی امریکی حکومت کے ساتھ رابطے پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان کی شمولیت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ کہا، حکومت امریکہ کے ساتھ تجارتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہشمند ہے۔ وکلاء سیاست کر لیں یا وکالت، جسٹس مندوخیل وکیل حامد خان کی عدم حاضری پر برہم ہو گئے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بانی پی ٹی آئی کے مقدمات سننے سے روکنے کے کیس کی سماعت۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ سینٹ کمیٹی کا اجلاس کتنے بجے ہے۔ ایڈوکیٹ اجمل طور نے بتایا کہ سینٹ کمیٹی کا اجلاس 2 بجے ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ پھر تو حامد خان کو عدالت آنا چاہیے تھا، سیاست کر لیں یا پھر وکالت کر لیں۔ ایڈوکیٹ اجمل طور نے کہا کہ کیس فکس ہونے سے متعلق سپریم کورٹ کی طرف سے آگاہی نہیں کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے غیر حاضر کارکنوں کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اے ٹی سی میں بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور دیگر کارکنان کے خلاف 9 مئی احتجاج اور دیگر مقدمات کی سماعت۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی عدم دستیابی کے باعث سماعت آگے نہ بڑھ سکی۔ وکیل صفائی نے موقف اختیار کیا، بانی پی ٹی آئی دستیاب نہیں، کیس آگے بڑھ نہیں سکتا۔ عدالت نے تینوں مقدمات کی سماعت 9 مئی تک ملتوی کر دی۔ شہر عقائد کے صارفین کو بڑا ریلیف ملنے کا امکان کہ الیکٹرک کی بجلی 6.62 فی یونٹ سستی کرنے کی درخواست۔ فروری کے فیول چارجز کی مد میں درخواست نیپرا میں دائر کر دی کہ الیکٹرک نے موقف اپنایا کہ ای کی 13.9 ارب روپے کی فیول لاگت ایڈجسٹمنٹ زیر التوا ہے۔ نیپرا اتھارٹی 16 اپریل کو کے الیکٹرک کی درخواست پر سماعت کرے گی۔ آئی ایم ایف پروگرام اور اصلاحاتی اقدامات سے پاکستانی معیشت مستحکم ہوئی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ٹیکس اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات نے معیشت کو سہارا دیا۔ نجی سرمایہ کاری میں اضافے سے ترقی کی رفتار مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ اے ڈی بی کی پاکستان کی معاشی شرح نمو 2.5% رہنے کی پیش گوئی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ، گورنر سندھ، میئر کراچی، صوبائی وزراء اور کارکنوں سمیت ہر مکتبہ فکر کے افراد شریک ہوئے۔ نماز جنازہ کے بعد مرحوم کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی گئی۔ پیپلز پارٹی کا تاج حیدر کو خراج عقیدت، سینئر رہنما کے انتقال پر 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ کینیڈا پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار۔ بیرک گولڈ کمپنی نے ریکارڈک منصوبے پر کام جاری کرنے کی حامی بھر لی۔ امریکی میڈیا کے مطابق بیرک گولڈ منصوبے میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی۔ بیرک گولڈ کا ریکارڈک منصوبے میں 50% حصہ ہوگا۔ منصوبے کے پہلے حصے پر رواں برس کام کا آغاز ہوگا۔ سال 2028 میں ریکارڈک منصوبے کی پہلی پروڈکشن متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک میئر کے وفد کے ہمراہ ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے شعبہ معدنیات میں وسیع استعداد موجود ہے۔ امریکی کمپنیوں کو معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع سے مستفید ہونا چاہیے۔ امریکی عہدیدار ایرک میئر کے منرلز انویسٹمنٹ فورم کے کامیاب انعقاد پر وزیر اعظم کو مبارکباد۔ امریکی وفد نے کہا، امریکہ پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کے مزید فروغ کا خواہاں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک میئر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ایرک میئر کے جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید مذمت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے ذریعے امریکی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ ایرک میئر کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کے تحت فراہم کردہ مواقع میں دلچسپی کا اظہار۔ مطلوب دہشت گرد شریف اللہ کی گرفتاری میں تعاون پر بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ پی ٹی آئی دور میں پی آئی اے کا خسارہ اور قرض آسمان تک پہنچ گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے قومی ایئر لائن کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وفاقی وزیر ہوابازی خواجہ آصف کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید۔ کہا، پی ٹی آئی دور میں پی آئی اے کے یورپین اور برطانیہ کے روٹس بند ہوئے۔
शहबाज शरीफ ने क़यादत संभाली तो यूरोपियन रूट्स बहाल हुए। आज 21 साल बाद PIA अरबों रुपए मुनाफा कमाने वाला इदारा बन गया। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल असद मजीद खान की मुलाकात इलाकाई तिजारत, ट्रांसपोर्ट, कॉरिडोर्स और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। असद मजीद ने ECO के अहदाफ और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। अब्दुल अलीम खान को 2 जून को ईरान में ECO इजलास में शिरकत की दावत। अब्दुल अलीम खान ने कहा, वस्त एशियाई रियासतें तुर्की और पाकिस्तान मुश्तरका तरक्की के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म बन सकते हैं। पाकिस्तान की मईशत जब बेहतर होने लगती है तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। बोले, माइंस एंड मिनरल्स के मौके पर भी इंतशारी टोला बाज नहीं आया। IMF को खत लिखने और मुजाहरे करने वाले भी यही इंतशारी लोग हैं। PTI का एजेंडा है कि पाकिस्तान कभी तरक्की ना करे। सेहत के शोबे में बहुत कुछ करने की जरूरत है। सेहत की सहूलत न मिलने से जच्चा और बच्चा की जिंदगी खतरात का शिकार हो जाती है। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा, इंसानी जिंदगियां बचाने के लिए हमें जदीद खतूत पर काम करना होगा। सेहत का शोबा वजीर आजम शहबाज शरीफ की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हमें सेहत के शोबे में मौक़े पैदा करने होंगे। सेहत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए पुरअज़्म हैं। सीनियर वजीर सिंह शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मंसूबों की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मंसूबों का मकसद सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली, नए टैलेंट, रोजगार के मौके पैदा करना है। सिंध हुकूमत प्रोडक्शन मंसूबों के जरिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती का फरोग चाहती है। जमीयत उलमा इस्लाम का गजा में इजरायली जारियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में कन्वेंशन और 13 अप्रैल को कराची में एहतजाजी मुजाहिरा होगा। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इस्लामी दुनिया के हुक्मरान अमरीका और मगरिब के सामने झुक रहे हैं। गजा के मुसलमानों पर जो बीत रही है या बीत चुकी तारीख के सफात पर स्याह धब्बों के सिवा कुछ नहीं। इजराइल ने मुआहिदा तोड़कर गजा पर शब खून मारा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शोबा मादनियात को माफिया के चुंगल से आज़ाद कराना चाहते हैं। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम के खिलाफ माफिया सरगर्म है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान कहते हैं, माफिया वज़ीर आला के इस्लाहाती एजेंडे को सबोताश करने की कोशिश कर रही हैं। वज़ीर आला KP का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि माफिया के सामने घुटने नहीं टेके जाएंगे। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम कोई खुफिया मामला नहीं। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता लाजिम व मलजूम है। भारत के जालिमाना हथकंडे कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं सकते। वफाकी वजीर अमीर मकाम का कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, मसला कश्मीर के हल के लिए हम अपना हर तरह का किरदार अदा करने को तैयार हैं। सलामती काउंसिल कश्मीर से मुतालिक अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाए। आज़ादी की मंजिल के हुसूल तक कश्मीरियों की सिफारती हिमायत जारी रखी जाएगी। सिंध हुकूमत का एक बार फिर प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सूबाई महकमा माहौलियात का कहना है कि पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा और गिरफ्तारी और सजा होगी। प्लास्टिक बैग्स समंदरी आलूदगी का सबब बन रहे हैं। प्लास्टिक बैग्स कराची के सीवरेज नालों की बंदिश की एक बड़ी वजह करार। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में गंदम कटाई शुरू हो गई। सरकारी सतह पर खरीदारी और रेट मुकर्रर न होने पर काश्तकार परेशान। मरकजी सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं, ज़राअत बेहतर होगी तो मईशत बेहतर होगी। गंदम की कटाई का अमल जारी है। गंदम का रेट न मिलने से किसानों की परेशानी में इजाफा होगा। हुकूमत ने गंदम का रेट ताहाल नहीं निकाला। पंजाब हुकूमत ने काश्तकारों के लिए अहम ऐलान कर दिया। सूबे से गंदम की नकलो हमल की बाकायदा इजाज़त मिल गई। बैनुल सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम के लिए डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम खरीदारी की जाएगी।
पंजाब के स्कूलों में खवातीन असातिज़ा के लिए शलवार कमीज और दुपट्टा लाजिम करार, मर्द असातिज़ा के जीन्स और टी शर्ट पहनने और तालिबात के मेकअप पर पाबंदी आयद। महकमा स्कूल एजुकेशन ने हिदायत जारी कर दी। पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में स्कूल दौरानिये में नमाज ज़ोहर के इंतजाम करने की भी हिदायत। डीजी एएनएफ मेजर जनरल अब्दुल मुईद हिलाल इम्तियाज मिलिट्री का बलूचिस्तान का दौरा। एएनएफ और महकमा एक्साइज और एंटी नारकोटिक्स बलूचिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। डीजी एएनएफ का लोरालाई स्काउट्स हेडक्वार्टर का दौरा। एफसी और सिविल इंतजामिया के साथ मुलाकात की। डीजी एएनएफ ने मनशियात के खात्मे के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। पोस्ट की काश्त में मुलव्विस गैर कानूनी अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। लाहौर में वायरल इन्फेक्शन के मरीज तेजी से फैलने लगे। तिब्बी माहिरीन ने तेज बुखार, खांसी, जिस्म में दर्द की शिकायत को मुमकिना कोरोना वायरस करार दे दिया। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में सैकड़ों मरीज सरकारी और निजी अस्पतालों में रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को रश के मकामात पर मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत। अलामात जाहिर होने पर क्वारंटीना करने का भी मशवरा दे दिया। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में अस्करी मसनूई ज़हानत के खतरात पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा आसिम इफ्तिखार अहमद ने मुबाहिसे से खिताब में कहा कि एआई को असलहे के किसी नए मुकाबले के मैदान में तब्दील होने से रोका जाए। अस्करी मैदान में एआई का इस्तेमाल नए असलहाजाती मुकाबलों का आगाज कर सकता है। एआई के आलमी अमन व सलामती पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। गजा में इजरायली बर्बरियत थम न सकी। इजरायली फौज के गजा पर हमले जारी, मजीद 60 से जायद फलस्तीनी शहीद और 213 जख्मी हो गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इजराइल के गजा पर हमलों में अब तक कम अज कम 50,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। इजरायली वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप से मुलाकात में गजा जंग जल्द खत्म करने का इशारा। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं जबरी बेदखली आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। गजा में जंग हमेशा नहीं चल सकती, इसलिए जंग बंदी बहुत ज़रूरी है। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन हस्साम बदरान कहते हैं सालिसों से राबता अभी भी जारी है, लेकिन ताहाल कोई नई तजावीज़ सामने नहीं आई। हमास ऐसे तमाम इक़दामात के लिए तैयार है जो जंग बंदी और फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी नस्ल कुशी को रोकने का सबब बने। चीन टैरिफ के मुकाबले में करेंसी में हेरा फेरी कर रहा है। चीन हमसे किसी नुक्ते पर डील कर लेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा इस वक्त चीन 104% टैरिफ अदा कर रहा है। टैरिफ की मद में हम रोजाना $2 अरब हासिल कर रहे हैं। जापान और जनूबी कोरिया के नुमाइंदे मुआहदे के लिए अमरीका पहुंच रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मार्च 2025 के मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान। प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों के लिए भारत के श्रेयस अय्यर, न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा और फास्ट बॉलर जैकब डिफी शामिल। रविंद्रा ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था। श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में अहम किरदार अदा किया। और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस गए। हरीपुर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। मलका कोहसाद मरी में गरज चमक के साथ बारिश और याराबाली हुई। पीडीएमए की 11 अप्रैल तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई कर दी।